Morning students, today I am going to take up the next unit, the coordination compounds. As the name suggests, this compound must contain coordinate bond. In coordinate bond, there is one-sided sharing of electron pair. So, in this chapter, there are two components, metallic and in coordination compound, there are two components, metallic and non-metallic compounds. The metallic components accept electron pair while non-metallic species donate electron pair, and in this unit we will use the term ligand. So let us take up first of all, what do you mean by addition compounds? Whenever two or more ionic compounds are mixed in stoichiometric proportion, dissolved in water, and then evaporate to crystallization stage, we get the new crystals which are different from that of a parent. In that case, the new compounds so formed are called as addition compound. Stoichiometric proportions like potassium chloride, magnesium chloride, they are taken in 1:1 ratio. Mole ratio, 1:1 mole ratio, not by mass. Then we dissolve in water, we mix it up, or both are mixed in solid state and then dissolved in water, filtered, then evaporation to a crystallization point. If the new crystals so formed are different from that of a potassium addition, then these crystals are called as addition compound. Similarly, ammonium sulfate and ट्राइसल्फेट क्रीम विट्रोल जिसे हम कहते हैं, ग्रीन विट्रोल, the new crystals so formed is called as more salt. Like in this case, carnallite, here is more salt. Potassium cyanide and ferrocyanide are mixed in 4:1 ratio, and we get a new compound called as potassium ferrocyanide. Potassium cyanide and silver cyanide mixed in equal proportion, and the new crystals so formed are called as potassium argentocyanide. All these compounds are addition compounds, but in some cases I have mentioned the square bracket, in other cases not. It means addition compounds are of two types. In this case, no square bracket is used, and they are nothing but double salt. And in which I have used square bracket, they are nothing but coordination compound or complexes. What do you mean by double salt? A double salt means the addition compounds which lose their identity. तो इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, डबल साल्ट लूज देयर आइडेंटिटी इन एक्वा सॉल्यूशन. क्या मतलब है? They are not united in aqua solution. आप पानी में डिसॉल्व करोगे, they will give potassium ion, magnesium ion, chloride ions. बिल्कुल जैसे सोडियम क्लोराइड को पानी में डिसॉल्व करते हैं, सोडियम आयन क्लोराइड आयंस. अमोनियम सल्फेट को डिसॉल्व करते हैं, अमोनियम आयन सल्फेट आयंस. साल्ट एनालिसिस में करते हैं, we can test for ammonium ion, we can test for sulfate ions. बेरियम क्लोराइड को डिसॉल्व करते हैं, बेरियम आयंस एंड क्लोराइड आयंस.
You can test for potassium ion, you can test for magnesium, you can test for chloride ion. क्लोराइड आयन में तो सिंपली है AgNO3 सोल्यूशन डालिए, व्हाइट पेस्ट आ जाएंगे. इसमें मैग्नीशियम मिक्सचर है. Similar in this case, you will get ammonium ions on dissolving water, ferrous ions, sulfate ions. नेचुरल रिएजेंट से आपका अमोनियम आयंस ब्राउन पेस्ट देते हैं, पता चल जाएगा. पोटाशियम फेरसाइनाइड से, और यहाँ पे बेरियम क्लोराइड सोल्यूशन 10th में भी पढ़ा है, 11th में भी. कोई भी सल्फेट आयन है, बेरियम क्लोराइड डालेंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से बेरियम सल्फेट के प्रेसिपिटेट बन जाएंगे. तो हमें पता चल गया इट मीन सल्फेट अटैच्ड फॉर्म में नहीं है, इट डिसोशिएट, इट मूव्स इंडिपेंडेंटली इन एक्वस सॉल्यूशन. तो ये दोनों कंपाउंड क्या हुआ, डबल साल्ट. डबल साल्ट क्या हुआ, एडिशन कंपाउंड जो पानी में अपनी आइडेंटिटी लूज कर देते हैं. तो यानी कि डबल साल्ट लूज द आइडेंटिटी इन एक्वस सॉल्यूशन. एडिशन कंपाउंड तो ये भी है, ये भी. इस केस में अगर मैं पानी में डिसॉल्व करूंगा तो क्या होगा, की पॉजिटिव तो मिल जाएगा, लेकिन Fe2 पॉजिटिव नहीं मिलेगा, Cn नेगेटिव नहीं मिलेगा. ऐसे ही इस केस में यू कैन टेस्ट फॉर पोटेशियम बोथ, बट यू कैन टेस्ट फॉर Ag पॉजिटिव, यू कैन टेस्ट फॉर Cn नेगेटिव. तो असलियत में कॉम्प्लेक्स ये है, ये कॉम्प्लेक्स है. तो फॉर्मूला ऑफ ए कॉम्प्लेक्स इज ऑलवेज एक्सप्रेस्ड विद इन स्क्वायर ब्रैकेट. तो ये लिखा है, ये कॉम्प्लेक्स आयन है. तो ये क्या है, इनको क्या बोला है, काउंटर आयन है. ये तो सिर्फ वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए कि जो भी अपोजिट चार्ज आयन होगा वो क्या कहलाएगा, काउंटर आयन. दे आर नथिंग बट काउंटर आयंस. तो इस कॉम्प्लेक्स के अंदर क्या देख रहे हैं, एक मेटालिक कंपोनेंट, एक नॉन मेटालिक कंपोनेंट, एक मेटालिक कंपोनेंट, एक नॉन मेटालिक कंपोनेंट. और इस मेटालिक कंपोनेंट को हम क्या वर्ड दे रहे हैं, क्या टर्म दे रहे हैं. यहाँ पे लिखा है मेटालिक है, नॉन मेटालिक. हमेशा नॉन मेटालिक कंपोनेंट लोन पे डोनेट करेगा. मतलब मेटालिक जनरली लोन पे रिसेप्टर होंगे, एसिड बिहेवियर दिखाएंगे. सेंटर मेटल आयन, न्यूक्लियर मेटल if it is uncharged, otherwise nuclear metal ion. तो क्या डेफिनेशन बनी, द मेटल और मेटल आयन विच एक्सेप्ट एट लीस्ट वन लोन पेयर इलेक्ट्रॉन. कहां से लेगा, नॉन मेटालिक कंपोनेंट, वो कौन है, विच एट लीस्ट वन लोन पेयर इलेक्ट्रॉन फ्रॉम रिएजेंट for coordination purposes. तो लीगेंड किसे कहते हैं, लीगेंड कहते हैं नॉन मेटालिक स्पीसीज विच डोनेट एट लीस्ट. लीगेंड ने क्या करना है, लोन पेयर डोनेट करना है. तो ये भी हो सकता है एक लोन पेयर डोनेट करे, एक वन इलेक्ट्रॉन शेयर करे, कम से कम एक लोन पेयर जरूर डोनेट करेगा, 20 का काम करेगा. और अगर कोई लिगेंड डोनेट भी करता है, एक्सेप्ट करता है, उसको हम पाई एसिड लिगेंड बोल देते हैं, वो बाद में आएगा. तो नॉन मेटालिक स्पीसीज विच डोनेट एट लीस्ट वन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू सेंटर मेटल आयन फॉर कोऑर्डिनेशन पर्पसेस और फॉर कॉम्प्लेक्स आयन फॉर्मेशन, फॉर कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, ऐसा कुछ भी लिख सकते हो. तो मुझे अब थोड़ा सा लिगेंड की क्लासिफिकेशन करनी है, और आज हम सिर्फ एक ही तरह के लिगेंड की क्लासिफिकेशन करेंगे, और वो होगी ऑन द क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज. पहला है कटायनिक लिगेंड. कटायन का मतलब पॉजिटिव चार्ज. तो क्या हुआ, पॉजिटिव चार्ज नॉन मेटालिक स्पीसीज कैपेबल ऑफ डोनेटिंग एट लीस्ट वन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू सेंटर मेटल आयन.
बाकी तो वही डाटा है, कैपेबल ऑफ डोनेटिंग एटलीस्ट 1 लोन सेंटीमेंट फॉर कोऑर्डिनेशन पर्पसेस। कटाने लीगल में पोस्टिंग चार्ज। आईयूपीएस रूल में क्या करना पड़ता है, नेमिंग के अंदर सफिक्स में यम लगता है, लाइक दिस वन। अगर NH2 होता तो हाइड्राजीन था, +1 में ऑर्गेनिक सेक्शन में पढ़ लिया है, लेकिन अब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे लोन पेयर नहीं है, तो क्या बना हाइड्राजीनियम। अगर पॉजिटिव चार्ज ना होता तो नाइट्रोसो था, और अब क्या बन गया नाइट्रोसोनियम। तो अनायनिक लिगेंड क्या होगा, अनायनिक लिगेंड होंगे नेगेटिव चार्ज स्पीसीज, अनायन का मतलब नेगेटिव चार्ज। बाकी वही नेगेटिव चार्ज स्पीसीज कैपेबल ऑफ डोनेटिंग एटलीस्ट 1 lone pair of electron to center metal ion for coordination purposes, for complex formation and for naming, and the suffix O is added। तो यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है कि ऑर्गेनिक सेक्शन में Cl ग्रुप लगता था तो हम बोलते थे क्लोरो ब्रोमो, OH में हाइड्रोक्सो, सेकेंडरी ग्रुप प्रिंसिपल का काम। लेकिन यहाँ पे क्या नाम होगा क्लोराइडो, ब्रोमाइडो, आयोडाइडो, ऐसे एसिटेटो, हाइड्रोक्सो, ऑक्सालेटो, और शॉर्ट नोटेशन OX, ग्लाइसिनेटो। अगर H आता ग्लाइसिन होता, अनायनिक है ग्लाइसिनेट, GLY इज द शॉर्ट नोटेशन। न्यूट्रल एलिमेंट अनचार्ज स्पीसीज कैपेबल ऑफ डोनेटिंग at least 1 lone pair of electron to center metal ion for coordination purposes and no specific rule। इसमें तो है सफिक्स में EM लगना है, इसमें क्या है सफिक्स में O लगना है, इसमें कोई नहीं। लाइक इन दिस केस एक्वा अमाइन, सर NH3 लिगेंड होगा तब अमाइन के M में डबल M आएगा, इसके अलावा जहाँ जहाँ अमाइन वर्ड इस्तेमाल होता है वहाँ पे सिंगल M आएगा एज पर IPC। pyridine शॉर्ट नोटेशन PY, इथाइलिन डाइअमाइड जिसको ऑर्गेनिक सिस्टम में कॉमन बोलते हैं, कॉमन बोलते हैं, और इथेन 1,2 डाइअमाइड। अब यहाँ पे सिंगल M देते हैं। सिर्फ अमाइन NH3 लिगेंड के केस में अमाइन में डबल M आएगा, बाकी किसी जगह नहीं आएगा, और शॉर्ट नोटेशन क्या होगी PN। तो नेक्स्ट टाइम हम नॉमेनक्लेचर करेंगे किसका, लिगेंड्स के करेंगे, क्लासिफिकेशन भी लिगेंड की ही करेंगे, लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ डेंटिसिटी। डेंटिसिटी का मतलब ऑन द बेसिस ऑफ अटैचमेंट साइट, कितनी जगह से लिगेंड जुड़ा हुआ है विद सेंटर मेटल आयन, कितने डोनर साइट हैं, उसके बेस पे हम क्लासिफाई